are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is lists and tables in HTML5. Let's get started. Answer the following. Full form of HTML, two types of tags used in HTML, types of HTML editors, name a web browser, viewing a HTML document, extension of HTML documents. WYSIWYG stands for the text that can be linked to another document or text. तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं. अगर आपने HTML के बारे में पढ़ा है और HTML के बारे में आप अच्छे से जान गए हो तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे सकते हो. Earlier you had learned about the basic tags in HTML5 for working with text and images. In this chapter we will discuss about the objects like lists and tables that can be embedded in the web page to make it look more professional. बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमने HTML उसके टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने जाना था कैसे उसमें टेक्स्ट एंड इमेजेस के साथ हम काम करते हैं. इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम लिस्ट एंड टेबल्स को इंसर्ट करते हैं किसी HTML डॉक्यूमेंट में. List in HTML5. A list is a collection of related items that can be used to represent information in pointed form. In our daily routine, we have to write many things, such as list of items required for a festival and list of steps to make a dish. List features of HTML5 allows us to display this type of information on the web page in an organized manner. There are three kinds of HTML lists, namely ordered list, unordered list and description list that can be created in HTML5 to display the items in the form of list. Let us learn about these in detail. तो बच्चों लिस्ट जो आपको पता ही है कि कलेक्शन होता है आपके रिलेटेड आइटम्स का, ठीक है, जिसको आप टेबल्स की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में दर्शाते हो. ठीक है, आपकी डेली रूटीन में आप काफ़ी सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते हो. वो आइटम्स की हो सकती है या आपके सब्जेक्ट्स की हो सकती है या नंबर्स की हो सकती है या फेस्टिवल्स की हो सकती है. ठीक है, या अगर आपको कोई डिश भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होते हैं, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स की अभी आप क्या बनाते हो, लिस्ट बनाते हो. ठीक है, लिस्ट जो होती है वो HTML5 में भी फीचर की जाती है, जो कि आपको टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अपने वेब पेज में अपने लिस्ट को ऑर्गेनाइज मैनर में दिखा सको. अब यहाँ पे बताया गया है कि HTML में 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट होती है. ठीक है, जो कि आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती है. इनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे. थिंक बॉक्स इन विच ईयर वॉज HTML डिज़ाइन, ये आपको बताना है कि HTML कौन से ईयर में डिज़ाइन किया गया था. Ordered list. An ordered list is a list where all items are numbered. This type of list is used to display the items in a sequential manner. In HTML, opening tag OL closing tag is used to create an ordered list. Each item of the list is enclosed between opening tag li closing tag and opening tag / li closing tag. Opening tag li closing tag will bring it to the next line. An ordered list has 2 attributes, namely type and start, which you can use in the following ways. Opening tag OL type equal to inverted comma A closing tag will start the list from A. Opening tag OL type equal to inverted comma A starts equal to inverted comma 3 closing tag will start the list from C. Opening tag OL type equal to inverted comma 1 starts equal to inverted comma 9 closing tag will start the list from 9. Opening tag OL type equal to inverted comma I start equal to inverted comma 3 closing tag will start the list from 3. Opening tag OL type equal to inverted comma I start equal to inverted comma 5 closing tag will start the list from 5. Below table shows a different example of the type attribute. Type numbering alphabetical scheme examples. A uppercase letters A B C D and so on. A lowercase letters A B C D and so on.
I, uppercase Roman numbers, first, second, third, fourth. I, lowercase Roman number, first, second, third, fourth. 1, numbers 1, 2, 3, 4 and so on. Let's see the use of type and start attribute of OL tag. तो बच्चों हम ऑर्डर्ड लिस्ट को पहले जान लेते हैं. ऑर्डर लिस्ट जो होती है एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे आप सारे आइटम को सीक्वेंस वाइज लिस्ट करते हो. इस टाइप की जो लिस्ट होती है ये आपके आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे आप उन्हें सिक्वेंशियल मैनर में उन्हें क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो. और HTML में आप इन्हें टैग्स के साथ ही डिस्प्ले करते हो ताकि जो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है वो क्रिएट हो सके. जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके 2 एट्रीब्यूट्स माने जाते हैं, एक होता है टाइप एंड दूसरा होता है स्टार्ट. ठीक है, जो कि फॉलोइंग वे से हम यूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है. फैक्ट टू नो, द डिफ़ॉल्ट प्लेयर ऑफ द यूट्यूबर इज़ डेवलप्ड इन HTML5. जो यूट्यूब है जिसमें आप वीडियोस देखते हो, गाने सुनते हो, ये जो डिफ़ॉल्ट प्लेयर है ये भी HTML5 में ही डेवलप किया गया है. Unordered list. An unordered list is also called bulleted list. In an unordered list, items are not given in any specific order. The list has a symbol in front of each list items. In HTML document, unordered list is enclosed between opening tag UL closing tag and opening tag / UL closing tags. Each item of the list is enclosed between opening tag li closing tag and opening tag / li closing tag. The unordered list also support the type attribute that specify the 3 patterns of bullets: disk, square, circle. Let's see the use of opening tag UL closing tag and opening tag li closing tag. तो बच्चों अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो थी वो आपकी सीक्वेंशियल लिस्ट थी. ये भी आपकी सीक्वेंशियल लिस्ट ही होती है लेकिन आपके जो आइटम्स होते हैं इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं दिए हुए होते हैं. ठीक है, इनमें जो सिंबल्स होते हैं उन्हें आप ईच आइटम के आगे यूज़ करते हो या इस्तेमाल करते हो. ठीक है, और जो आपके HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट को एनक्लोज करते हैं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ. इस तरह से जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो आपके टाइप एट्रीब्यूट को सपोर्ट करती है जिसमें आपके 3 पैटर्न्स ऑफ बुलेट्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है. डू यू नो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट्स इज डिस्क. More to know, if Internet Explorer web browser is being used, the type attribute values have to be typed in small case only. बच्चों क्या आपको पता है अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो यूज़ किया जाए, ठीक है, तो आपका जो टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू है उसे आपको स्मॉल केस में ही टाइप करना पड़ेगा. Every list has the ability to be placed inside another list. For example, an ordered list can be nested inside an unordered list and vice versa. Ensure that the inner and outer list tags should be closed while creating nested list. तो बच्चों जो आपकी लिस्ट होती है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरी लिस्ट के अंदर प्लेस हो जाए. जैसे कि आपकी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसको आप इजीली अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नेस्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन लिस्ट ब्रैकेट ओपनिंग टैग DL क्लोजिंग टैग ... ओपनिंग टैग / DL क्लोजिंग टैग. HTML description list or definition list displays elements in definition form like in dictionary. The opening tag DI closing tag, opening tag DT closing tag and DD tags are used to define description list. The 3 HTML description list tags are given below. Opening tag D1 closing tag defines the description list. Opening tag DT closing tag defines data terms. Opening tag DD closing tag defines data definition description. Let's see the use of opening tag DL closing tag, opening tag DT closing tag and opening tag DD closing tags in creating a definition list.
तो बच्चों डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है ये आपके एलिमेंट्स को डेफिनेशन फॉर्म में दिखाती है, डिस्प्ले करती है। ठीक है, जैसे कि आपके डिक्शनरी में होता है। डिक्शनरी में आपने देखा होगा आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही लगे हुए होते हैं। और इस तरह से आपके जो 3 डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती हैं उन्हें इस तरह से आप टैग कर सकते हैं, जिसमें आपका D1 टैग होता है, DT टैग होता है एंड DD टैग होता है। Tables in HTML. Tables help us to display data on the web page in an organized and systematic manner. They assist in the positioning and the arrangement of content on the web page. HTML opening tag, table closing tag is used to display data in tabular form, row, column. There can be many columns in a row. We can create a table to display data in tabular form using opening tag, table closing tag with the help of opening tag, tr closing tag, opening tag, td closing tag and opening tag, th closing element. HTML table tags. Tags description. Opening tag, table closing tag, it defines a table. Opening tag, tr closing tag, it defines a row in a table. Opening tag, th closing tag, it defines a header cell in a table. Opening tag, td closing tag, it defines a cell in a table. Opening tag, caption closing tag, it defines the table caption. Let's see how to create a table in HTML. तो बच्चों लिस्ट के बाद अब हम टेबल्स के बारे में जान लेते हैं, कैसे HTML में हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। टेबल्स जो होती हैं ये हमें हमारे डेटा को वेब पेज पे डिस्प्ले करने में हेल्प करती है। ठीक है, इन्हें हम ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक मैनर्स में डिस्प्ले कर पाते हैं टेबल्स के थ्रू। ठीक है, इसमें हम जो टेबल्स होती हैं उनकी पोजीशनिंग को और कंटेंट के अरेंजमेंट को भी एडजस्ट कर पाते हैं हमारे वेब पेज में। जो HTML टेबल टैग होता है वो इस तरह से आपका ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ ही डिस्प्ले होता है। ठीक है, और इसके साथ ही ये आपके डेटा को टैबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब करता है, उन्हें प्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके टेबल में जो आपके टैग्स होते हैं वो इस तरह से दिखाए गए होते हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग टैग, टेबल क्लोजिंग टैग होता है ये आपके टेबल को डिफाइन करता है। TR होता है आपके रोज़ को डिफाइन करता है टेबल में। TH जो होता है ये आपके टेबल के हेड को डिफाइन करता है। TD जो होता है ये आपके सेल को डिफाइन करता है। एंड कैप्शन आपको पता ही ये आपके टेबल के कैप्शन को डिफाइन करता है। Let's see how to create table in HTML. As you can see, the data is arranged in a table but the lines are not visible. The table consists of 5 rows and 3 columns. To add the borders to the cell, let's learn about the table attribute. तो बच्चों हम टेबल के एट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। टेबल्स जो होती हैं इसमें आपके 5 रोज होते हैं एंड 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और आप देख पा रहे हो जो डेटा होता है ये आपके टेबल्स में अरेंज होता है, लेकिन इसमें जो लाइंस होती हैं ये विजिबल नहीं होती। तो इसलिए अगर आपको सेल्स में बॉर्डर ऐड करना है तो आपको वहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डालने पड़ेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग. The attributes given on next page can be applied in a table to enhance its look and appeal. Border, BG color and border color. A table's border is specified through border attribute. It forms a border around the table. The border color attributes is used to specify the color of table's border. This attribute is defined in opening tag, table closing tag. BG color attribute is used to set the background color for the whole table or just for one cell. Align attribute. Align attribute aligns the table with respect to the web page. Align attribute can take the following values. Left aligns the table. Center aligns the table. Right aligns the table. Height and width attributes. Height attribute specify the table height and the width attribute specify the width of the table. You can specify table width or height in terms of pixels or in terms of percentage of available screen area. Let's see the use of border. Border color align height and width attribute of table tag.
तो बच्चों हम बॉर्डर, बीजी कलर एंड बॉर्डर कलर के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम अपने टेबल्स में क्या कर सकते हैं, उन्हें स्पेसिफाई कर सकते हैं। टेबल का जो बॉर्डर होता है ये स्पेसिफाइड होता है थ्रू बॉर्डर एट्रीब्यूट, ठीक है, और ये आपके टेबल का बॉर्डर जो है वो फॉर्म करता है। इसके बाद जो बॉर्डर कलर होता है ये आपके जो टेबल की बॉर्डर होता है उसे स्पेसिफाई करता है, ठीक है, और इसे आप टेबल जो आपका टैग होता है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ इसे आप दर्शाते हो। बीजी कलर जो एट्रीब्यूट होता है इसका मतलब होता है कि आपके जो टेबल है उसका बैकग्राउंड का कलर जो होता है वो आप चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आप किसी वन सेल का भी जो बैकग्राउंड कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो। अलाइन एट्रीब्यूट जो होते हैं ये आपके टेबल को अलाइन करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ द पेज, मतलब आपको लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, सेंटर में लगाना है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट जो होते हैं ये आपके टेबल के हाइट एंड विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सब भी आप इसके थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। मोर टू नो द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट इज 0, इट स्पेसिफाई नो बॉर्डर। जो आपके बॉर्डर का एट्रीब्यूट होता है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, टू कंट्रोल द स्पेसिंग इन सेल्स, द सेल्स स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड। सेल पैडिंग, इट इज़ यूज्ड टू ऐड मोर स्पेस इनसाइड ईच cell. It defines the space between the cell border and the cell content. Cell spacing, it is used to put more space around each cell. It defines the space between cells. Now see the use of cell spacing and cell padding attribute of table tag. The default value of cell spacing and cell padding is 2 and 1 respectively. तो बच्चों हम सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सेल की स्पेसिंग को कंट्रोल करना है वहाँ पे आपको पैडिंग एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ता है। सेल पैडिंग जो होती है यह आपके सेल के अंदर मोर स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपके सेल बॉर्डर के पास बहुत ज़्यादा अगर आपको स्पेस चाहिए होता है तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग जो होता है ये यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने सेल के आसपास जो स्पेस है उसे आप अरेंज कर सको, ठीक है। ये आपके सेल्स के बीच के स्पेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। Fact to know, the attributes of a table also apply to rows and columns also in a similar manner except for the cell padding and cell spacing. जो एट्रीब्यूट होते हैं आपके टेबल के ये आपके रोज़ एंड कॉलम्स में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, सिमिलर मैनर में, लेकिन इसमें सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग इंक्लूड नहीं होती। मर्जिंग कॉलम्स एंड रोज, वी कैन मर्ज columns as well as rows of a table in HTML using the call span and row span attributes of opening tag td closing tag and opening tag th closing tags respectively. Attributes call span and row span with opening tag td closing tag and opening tag th closing tag. Attribute value effect called span number specifies 2 or more columns to be merged. Row span number specifies 2 or more rows to be merged. तो बच्चों हम मर्जिंग कॉलम एंड रोज़ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप दो कॉलम्स को या दो रोज़ को आपस में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट में ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ टीडी लिखना पड़ेगा एंड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ टीएच लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। कॉल स्पैन जो होता है इसमें आपको नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसमें आपके 2 और 2 से ज़्यादा कॉलम्स को आपस में क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। रो स्पैन जो होता है ये आपके 2 या 2 से ज़्यादा रोज़ को साथ में मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।